پاکستان کی آبادی کا 60% طبقہ 18 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ مستقبل کے ان معماروں کی اکثریت اسی صورت میں خوش نصیب ثابت ہو سکتی ہے کہ جب ان کی تربیت اور کردار سازی پر بھرپور توجہ دی جائے۔ نوجوان نسل کو برباد کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ نشے کی لت ہے۔ سرحد پار دشمن اور ملکی صفوں میں چھپے مفاد پرست ملک میں سازشوں کا بازار گرم رکھتے ہیں اور خاص طور پر نشانہ بناتے ہیں انہی نوجوانوں کو۔ تحقیقات اور مختلف سرویز سے یہ بات ثابت ہے کہ نوجوان دوران امتحانات نیند بھگانے اور سادہ لو لڑکیاں موٹاپا گھٹانے کے چکر میں منشیات کی لت میں مبتلا کر دیے گئے ہیں۔ آج کل پوش ایریاز میں آئس چل رہی ہے، اسکولز، کالجز، جگہوں پہ اس کی ہم روک تھام کریں، اور اسکولز کالجز ایسوسیشن کو بھی ہم نے لکھا ہے، ان سے بھی میٹنگ ہماری چل رہی ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ میں صرف ایک یہ کہوں گا کہ جو ان کے والدین ہیں، بچوں کے جو اسکولز میں یا ان کاموں میں کوئی انوالومنٹ ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ ہیروئن اور چرس تو عام نشے بن کر رہ گئے ہیں، لیکن ایکس ٹی سی ٹیبلٹس، انجیکشنز، آئس اور کرسٹل ڈرگز بھی جدید منشیات کی اقسام ہیں۔ اسی طرح منشیات کی جدید اقسام یعنی پارٹی ڈرگز کو نوجوان ڈانس پارٹیز میں بے خودی طاری کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نتیجتاً نشے کی لت میں مبتلا نوجوانوں کو جگر، پھیپھڑوں کا ناکارہ ہونا، نفسیاتی عارضے، سوکھا پن، HIV ایڈز، ہیپاٹائٹس بی اور کینسر جیسے مہلک امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ ہمارے انسپیکٹر حضرات بھی بہت محنتی ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ اب فوکس ہم جو کر رہے ہیں آئس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ تقریباً اسکولز میں اپنے بچوں کو تھوڑا نظر رکھیں ان کے اوپر، اسکول میں بچے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کن سے مل رہے ہیں، ان کا بھی کام ہے، ہمارا صرف اکیلا وہ کام نہیں ہے۔ جب ہم مل کر کام کریں گے تو امید ہمیں اللہ کے کرم سے ہم اس چیز کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں منشیات کی ترسیل کے 2 بڑے راستے ہیں۔ پہلا گولڈن ٹرائی اینگل کہلاتا ہے، جو کہ 3 ممالک میانمار، تھائی لینڈ اور لاواس کے درمیان منشیات کی ترسیل اور تیاری کا ذریعہ ہے۔ دوسرا گولڈن کریسنٹ ہے، جس میں افغانستان کے ساتھ تاجکستان اور پاکستان کا نام بھی آتا ہے۔ افغانستان سے دنیا بھر میں پھیلائی جانے والی 150 ٹن ہیروئن میں سے 44 ٹن ہیروئن پاکستان میں استعمال ہوتی ہے۔ یونائیٹڈ نیشن آفس آف ڈرگز اینڈ کرائم کے مطابق پاکستان میں 60 لاکھ افراد نشے کا استعمال کرتے ہیں، جن میں سے 40 لاکھ باقاعدہ نشے کے عادی ہیں۔ ان نشے بازوں میں سے 8 لاکھ ہیروئن کے نشے میں مبتلا ہیں۔ اسی طرح سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر اینڈ نارکوٹکس کنٹرول کو پیش کی جانے والی رپورٹ کے مطابق ملک کے خداداد کے 53% ہائر ایجوکیشن طلبہ کسی نہ کسی صورت میں ڈرگز کا استعمال کر رہے ہیں۔ ٹیم گرفت ماضی میں بھی 12 منشیات فروشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے متعدد پروگرامز کر چکی ہے، جن میں ٹیم گرفت نے صحافتی فریضے کو سر انجام دینے کے لیے مشکلات کا سامنا بھی کیا۔ آج کی گرفت ایپیسوڈ کا مقصد بھی منشیات فروشوں کو بے نقاب کر کے ناظرین میں شعور اجاگر کرنا ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت پر بھرپور توجہ مبذول کریں، کیونکہ ملک و ملت کی ترقی کا سارا انحصار انہی نوجوانوں پر منحصر ہے۔ ایکسائز کے اینٹی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کے AETO یعنی اسسٹنٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر احمد یار کھوسو نے ٹیم گرفت سے رابطہ کیا اور منشیات فروش گروہ کے خلاف ہونے والی ایک کارروائی کا اندیا دیتے ہوئے ٹیم گرفت کو ایکسائز ویسٹ کے آفس آنے کی دعوت دی۔ اس وقت ہم بہت تیزی میں ہیں۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ان کا اینٹی نارکوٹکس کو دیکھتے ہیں، ان کی طرف سے ہمارے پاس احمد یار صاحب ہیں، ان کی طرف سے فون آیا اور وہ کسی کارروائی کے لیے جا رہے ہیں جس کی نوعیت ابھی تک انہوں نے ہمیں بتائی نہیں۔ ہم راستے میں ابھی ان کے آفس تک پہنچتے ہیں، آفس تک پہنچنے کے بعد ہم آپ کو فردر دکھاتے ہیں کہ کیا کارروائی ہونے والی ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ETO ویسٹ کے آفس میں ہم احمد یار کھوسو صاحب ہیں، ان کے انچارج۔ جیسے کہ سپاہیوں کی جو ہے وہ تیاریاں لگ رہی ہیں، تو ایک آپریشن میرے خیال سے کوئی تیاری کافی حد تک ہو چکی ہے۔ ابھی آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ کوئی کارروائی کرنے آپ جا رہے ہیں اینٹی نارکوٹکس کے حوالے سے، تو اس میں ابھی کیا اس کی نوعیت ہے کام کی؟ اس مسئلے میں تو میں آپ کو کام تو بہت اچھا کام ہے، لیکن میں آپ کو اس بارے میں بتا نہیں سکتا ابھی کوئی بھی۔ جی یہ تو آپ چل کے آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ وہاں پہ
किस तरह कार्रवाई कितनी देर में हम करने वाले हैं? बस अभी बस मुखबर आने वाला है, उससे मेरा राब्ता हो गया, जैसे ही मुझे वो अपना वेरीफाई करता है तो मैं फिर चलते हैं इंशाल्लाह, आप चल के सामने हर चीज़ देख लेंगे। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर में कार्रवाई होने वाली है। इस कार्रवाई के नौयत के हवाले से अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। थोड़ी देर में जैसे ही इंफॉर्मेशन आ जाएगी हम एक लाइव रेड के ऊपर जा रहे हैं, आपको भी उसी तरीके से जो भी हालात सामने होंगे वो दिखाएंगे। AETO ने टीम गिरफ्त से मनशियात फरोशों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों की तफसीलात तो मख्फी रखी, लेकिन अहलकारों की तैयारी और तहर्रुक से किसी गैर मामूली ग्रोह के ताक़ुब का अंदाजा हो रहा था, जबकि दूसरी जानिब मुखबर से मुसलसल राबिता था। ये बताएं, अभी क्या आपके पास इंफॉर्मेशन आई? अब ये हम हमारे ख़ास मुखबर हैं, ये बता रहे हैं कि कोई बंदा सामान लेके आ रहा है। अभी जैसे उनसे दोबारा ये हमें वेरीफाई करते तो इंशाल्लाह हम यहाँ से निकलते हैं। कितनी देर तक कार्रवाई अब शुरू हो जाएगी? 20 मिनट की इंशाल्लाह, 15-20 में ये ओके करता है, वो बंदा वहाँ से रवाना हो चुका है, ज़रा हमारे उससे अपना रेंज में आ जाए तो हम इंशाल्लाह जल्दी निकलते हैं। नाज़रीन, अभी कोई एक ऐसी कार्रवाई होने वाली है जिसमें एक नारकोटिक्स के हवाले से काफ़ी बड़ी मिकदार में कुछ सामने आने वाला है, तो उसके लिए अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर नहीं की जा रही है। वजह इसकी ये भी होती है कि कहीं पे कॉन्फिडेंशियलिटी इसकी जो है स्पॉइल ना हो जाए और वो जो ऑपरेशन कंडक्ट किया जाने वाला है वो कोई उसके अंदर कोई लीकेज ना हो जाए। इस वजह से ये तमाम चीज़ें जो है वो सीक्रेट रखी जाती हैं उस वक्त तक जब तक कि मुलजिम सामने ना आ जाए। असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर अहमद यार खोसो ने हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तहत दौरान कार्रवाई टीम गिरफ्त को जवानों से पीछे रहकर कवरेज करने की हिदायत की। आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है, अब निकलने की तैयारी? जी अब निकलने की तैयारी है, लेकिन आप मेहरबानी करके ज़रा आप हमारे बैकअप पे रहिएगा। आप आगे नहीं है वहाँ पे कोई भी अल्लाह ना करे कोई फायरिंग या कोई भी, क्योंकि स्मगलर लोग होते हैं, इनके बैकअप पे भी लोग होते हैं, तो आप ज़रा पीछे एहतियात से रहिएगा। इंशाल्लाह आपके सामने हर चीज़ होगी, इंशाल्लाह में कामयाबी होगी इंशाल्लाह। फिर चलें। नाज़रीन, अभी हमें पीछे रहने की हिदायत भी की गई है। हिफाज़ती नुक्ता निगाह से भी ये बात है कि हमने अपनी कवरेज तो पूरी करनी है, लेकिन हमें उस कार्रवाई का हिस्सा ऐसा इस तरीके से नहीं बनना है कि अथॉरिटीज़ को हम जाके लीड करना शुरू कर दें। तो हम अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। इसी हवाले से जो भी चीज़ होगी, जो भी कवरेज होगी, वो हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन आगे उनसे चले जाना, अथॉरिटीज़ से आगे चले जाना, वो हमारी जिम्मेदारी में नहीं है, वो हम नहीं कर सकते इनको बाईपास। तो इसी वजह से हम जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसके बारे में भी हम नहीं पूछ रहे कि क्या कार्रवाई की नौयत होने वाली है और किस तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, मिकदार कितनी है नारकोटिक्स की, किस नौयत की नारकोटिक्स हैं, ये तमाम चीज़ें अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं की गई और हम भी इस चीज़ के लिए इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं अहमद यार साहब को, क्योंकि इनके इन्फॉर्मर की और इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर अगर कोई लीकेज होती है तो यहाँ पे मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं, इन्फॉर्मर्स भी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन कंसर्न होते हैं इस हवाले से भी, तो वो तमाम चीज़ें जो है अब हिदायत दी जा रही है। के भी लोग खड़े होते हैं तो अच्छा, अभी आप क्या हिदायत इनको क्या मिल रही है? मैं इनको ये कह रहा हूँ क्योंकि ये पब्लिक प्लेस पे आ रहा है ना बंद, तो हमें हर लिहाज से एहतियात करना है, अता ना करे वो फायरिंग कर देता है, हमें उनका भी बचत करनी है क्योंकि वहाँ की पब्लिक एकदम आ जाती है। मैं इनको ये हिदायत कर रहा हूँ कि हमें हिक्कत होने और आराम से हमें अपने टारगेट को अचीव करना है। नाज़रीन, इसका मतलब है कि किसी जगह पे ओपन एरिया में जो है कार्रवाई होने वाली है, कोई अड्डे के ऊपर नहीं जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा ख़तरा होता है, लेकिन ख़तरा इस लिहाज से भी मौजूद है कि अगर उनके बैकअप में कोई ऐसे लोग मौजूद होंगे जो उनको वेपन्स के साथ जो है वो फॉलो कर रहे हो, तो फिर स्मगलर्स के साथ सिलसिला ये होता है कि उनको उसी लिहाज से डील करना पड़ता है पब्लिक के अंदर, क्योंकि स्ट्रेट फायरिंग किसी भी अथॉरिटी की तरफ से एक मुश्किल चीज़ हो जाती है उनको जस्टिफाई भी करना, लेकिन क्योंकि क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल्स के लिए कोई एथिक्स नहीं होती हैं, वो पब्लिक के ऊपर भी फायर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटीज़ के अपने लिहाज से हर चीज़ की जवाबदेही होती है और इसीलिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अंदर ऐसे लोगों को, ऐसे एक्सपीरियंस लोगों को जो है वो शामिल किया जाता है कि जहाँ पे वो ऐसी अनटूवर्ड इंसिडेंट से जो है वो बचे और अवाम की सेफ्टी को देखते हुए कोई भी कार्रवाई करें गैर कानूनी अनासर के खिलाफ। आगे पीछे उनके बंदे खड़े होते हैं, तो इसी वजह से हम इसको बहुत ही राज में रखते हैं, तब जाके हमें कामयाबी होती है। 4-5 मिनट में ये बंदा पहुंचने वाला है, मोबाइल को देख के ये बंदा ये हमसे भाग जाएगा। उतरो 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 उतरो। नाज़रीन, बहुत तेज़ कार्रवाई हुई है। एंटी नारकोटिक्स की एहलकारों की टीम कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी के साथ ऑफिस से रवाना हो गई।
ETO ایکسائز کے ساتھ اس وقت ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ہم ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتے لوکیشن. یہ بتائیں سر, ابھی آپ کی انفارمیشن بات ہوئی ہے تو اس نے کیا بتایا؟ بس اب انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں ہو جائے گا. ہم اسپاٹ پہ بھی پہنچنے والے ہیں جی. انشاءاللہ 5-10 منٹ میں ہمارا یہ کام ہو جائے گا, کیونکہ ہماری یہ جو نیٹ ورک ہے یہ چلتے خفیہ طریقے پہ ہے, کیونکہ ان کی نالج اور ان کی انفارمیشن بہت تیز ہوتی ہے. آگے پیچھے ان کے بندے کھڑے ہوتے ہیں, تو اسی وجہ سے ہم اس کو بہت ہی راز میں رکھتے ہیں, تب جا کے ہمیں کامیابی ہوتی ہے جی. کانفیڈینشلٹی شروع سے ہی اس آپریشن میں جو ہے وہ ساتھ رہی ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن ایسی لیک نہیں کی جا رہی ہے یا پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہے ایون ہمیں بھی, کہ اگر کوئی انفارمیشن اس طریقے کی آگے چلی جاتی ہے تو اس وقت یہ آپریشن جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے, اور جو لوگ جو کرمنلز ابھی کوئی کارروائی کرنے والے ہیں تو وہ ان کے تک اگر یہ اطلاع پہنچ جائے تو وہ اپنی کارروائی ترک کر کے اور کسی اور آلٹرنیٹیو روٹ پہ چلے جائیں یا اس وقت اپنی کارروائی روک دیں. تو اس وجہ سے جو ہے ابھی کوئی بھی انفارمیشن ہمیں نہیں دی جا رہی. دوران کارروائی فورس نے اپنے انفارمر سے مسلسل رابطہ رکھا جو کہ منشیات فروش گروہ کے تعاقب میں ان کی نقل و حرکت کی اطلاعات باہم پہنچا رہا تھا. حکمت عملی کے تحت موبائل کو پیچھے کر دیا گیا اور ایک پرائیویٹ کار جس میں اسسٹنٹ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر احمد یار کھوسا خود موجود تھے کارروائی کو خود لیڈ کیا. ناظرین, اس وقت ہم دوبارہ سے ری اسمبل ہوئی ہے ٹیم, اور تھوڑی سی تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ موبائل کو پیچھے رکھا جا رہا ہے. سر, اس کی کیا وجہ ہے موبائل کو پیچھے رکھنے کی, اور ابھی آپ نے ایک گارڈ اپنے ساتھ بلا لیا ہے؟ ابھی ہم انشاءاللہ ہم اس کو ابھی 2-4-5 منٹ میں یہ بندہ پہنچنے والا ہے. موبائل کو دیکھ کے یہ بندہ یہ ہم سے بھاگ جائے گا. پرائیویٹ گاڑی پہ یہ ہمارے پر شک نہیں کرے گا, اس لیے میں نے ساتھ اپنا پرسنل بندہ رکھ لیا ہے تاکہ ہمیں اس کو ہاتھ ڈالنے میں آسانی رہے گا. ناظرین, مستقل احمد یار صاحب یہ جی یہ بندہ آ گیا ہے. ابھی ہم اس کو اٹھانے والے ہیں, انشاءاللہ ہماری کامیابی ہو جائے گی. اتر بیٹا جلدی. ڈپارٹمنٹ کے جوانوں نے آنن فانن منشیات فروشوں کو جکڑ لیا تھا. ناظرین, بہت تیز کارروائی ہوئی ہے, ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم کہ اتنی تیزی سے کارروائی ہوگی. وہ حواس باختہ تھے, کسی قسم کے رد عمل یا سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا. کارروائی تیزی سے کی گئی ہے, کوئی موقع نہیں ملا ہے اس کو بھاگنے کا. ایک پیچھے سے بیک اپ میں بائک پہ بھی سوار لوگ موجود تھے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے, اور اس وقت موبائل بھی جو ہے کال کر لی گئی ہے. مجرم منشیات سمیت حراست میں لیا جا چکا تھا, لیکن اس کے ساتھ موجود ایک اور منشیات فروش بھاگ نکلا. ابھی ایک شخص یہاں پہ اور کھڑا ہوا تھا, وہ بھاگا ہے کیا یہاں سے؟ ادھر سے بھاگا ہے. ایک آدمی یہاں سے فرار بھی ہوا ہے جو ڈیلیوری شاید لے رہا تھا. سر, یہاں سے کوئی ایک بندہ بھاگا بھی ہے اندر کی طرف؟ جی ہاں, ایک بندہ بھاگ گیا. مفرور کے تعاقب میں اہلکاروں نے بھی دوڑ لگا دی. مفرور شخص اہلکاروں کے ہاتھ نہ آیا اور بچ نکلا. پیچھے ابھی اس کو دیکھا جائے. جی پیچھے کوشش کرتے ہیں. تھوڑا ابھی اور بھی آگے سپاہی یہاں سے جا رہے ہیں آگے ETO ایکسائز کی طرف سے. ایک اچھی کارروائی ہوئی ہے, احمد یار صاحب کی ایک اچھی کارروائی سامنے آئی ہے. یہاں پہ ایک شخص ڈیلیوری دینے کے لیے کھڑا تھا, اور یہاں جو شخص ڈیلیوری لینے کے لیے آیا ہوا تھا وہ یہاں سے فرار ہو گیا ہے. جس شخص کے پاس ابھی مال تھا وہ ابھی ریکور ہو چکا ہے مال سمیت. سر, ابھی کیا مال میں آپ نے چیک کیا کیا ہے؟ ہم وہاں چل کے اس کو چیک کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ اس میں سے کتنی کوانٹٹی یہ کیا ہے, چرس ہے, گردہ ہے, کیا ہے. کافی آگے تک سرچ کرنے چلے گئے تھے سپاہی, لیکن ابھی وہ شخص میرے خیال سے بھاگ چکا ہے. سر, یہ جو شخص بھاگ چکا ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کوئی ایسی چیز؟ یہی بندہ بتائے گا, چل کے انٹروگیٹ کرتے ہیں اس کو, پھر آپ کو فردر بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. ایک اچھی کارروائی سامنے آئی ہے, کافی سارے لوگ بھی یہاں پہ جمع ہو گئے, تو اس کارروائی کو ابھی یہاں تک رکھیں گے کیونکہ کوئی اور ان کے بیک اپ میں نہ ہو ایسا. یہ ان کے بیک اپ میں بھی لوگ ہوتے ہیں؟ جی ہاں, بالکل ہوتے ہیں. ان کے بائکر پائلٹ اور ان کے اپنا محافظ آگے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پولیس ایکسائز یا کوئی اور محکمہ نہیں ان کو چیک کرا یا ان کو گرفتار نہ کر سکے. یہ ابھی آپ گئے تھے دیکھنے, آگے وہ بندہ ملا؟ نہیں, وہ نہیں ملا, بھاگ گیا. بالکل بیک اپ تھا اس کا, اس کے پیچھے. فردر کارروائی کیا ہوگی؟ جی فردر چلتے ہیں تھانے پہ, وہاں پہ انٹروگیٹ کرتے ہیں, فردر آپ کو بتاتے ہیں کہ. احمد یار صاحب کی طرف سے یہاں پہ ایک کارروائی کی گئی ہے. تھوڑا سا ایک سلم سا ایریا یہاں پہ اٹیچ ہو جاتا ہے, جا کے آگے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو شخص ڈیلیوری لینے آیا ہوا تھا
वो यहाँ से फरार हो गया और बाकी कार्रवाई जो की जाएगी वो थाने में चल के की जाएगी. एक्साइज टीम ने मुजरिम को मनशियात समेत हिरासत में लेकर एक्साइज ऑफिस का रुख किया ताकि तफ्तीश करके मजीद मनशियात फरोशों को भी गिरफ्त में लिया जाए. सर ये बताइएगा कि जो अभी कार्रवाई की गई अनयूजुअल सा है कि दिन के टाइम पे डिलीवरी दे रहा था, तो क्या वजह क्या है इसकी, ये दिन के टाइम पे क्यों डिलीवरी दे रहा था? क्योंकि ये तो शाम में ही कार्रवाई होती है. एक बात मेरे जहन से निकल लें आप, ये जो डिलीवरी जो है मनशियात की वो रात को होती नहीं, वो दिन को होती है. जी हाँ, रात को तो अमूमन हर जगह चेकिंग होती है ना, रात को हर जगह अमूमन पुलिस या कोई भी डिपार्टमेंट चेक कर रहा होता है. तो ये डिलीवरी ये सुबह से अगर शाम हो जाएगी वो आपको डिलीवरी नहीं देंगे, सूरज गुरूब होने के बाद डिलीवरी नहीं देते. जी हाँ, क्योंकि उसके बाद वजह क्या है इसकी? उसकी वजह ये कि ये इस चीज़ से बहुत ही वो अपना होशियार होते हैं कि कहीं कोई चीज़ हमारी चेक ना हो जाए. दिन को आपको पता है कि कोई चेक नहीं, तो रश होता है, वो ज़्यादातर अपना रश वाले टाइप को यूज़ करते हैं. शाम को अमूमन सूरज गुरूब होने के बाद हर कोई अपना पुलिस ज़्यादातर चेक करती है, इसलिए ये सूरज गुरूब होने के बाद आपको डिलीवरी अगर आप कहेंगे भी आपको नहीं देंगे ये. जी हाँ. और रात में जो कार्रवाइयाँ होती हैं फिर आप लोगों की, वो किस लिहाज से की जाती है? रात को अगर ये मुझे बता देता है कि मेरे घर पे पड़ा हुआ है तो हम फिर रात को 12 बजे के बाद इसके घर पे रेड करेंगे. मतलब अभी अगर फर्दर आगे अपने इन्वेस्टिगेशन में ये बता दे कि घर पे पड़ा है या किसी और जगह पे पड़ा है तो रात में जाएंगे? जी हाँ, अगर किसी घर पे पड़ा है तो हम किसी भी जगह पर हम रात के 12 बजे के बाद जाएंगे. उसकी क्या वजह होती है? क्योंकि दिन के टाइम पे तो कार्रवाई ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं कि आप कोई रिकवरी के लिए जा रहे हैं तो आपको अगर कोई रेजिस्टेंस आती है तो बाकी तमाम एजेंसीज जो हैं, पुलिस है, वो आपके साथ अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकती है, आपकी हेल्प करने के लिए आ सकती है. नहीं, इसमें दो चीजें हैं ना, अगर सिर्फ इस बंदे को पता है और किसी को नहीं पता, ठीक है ना, फिर तो हम रात को करेंगे. अगर इस बंदे के बाद अभी किसी के पीछे है तो फर्दर अगर ये हमें अभी बता देता कि मेरे घर पे है तो फिर हम अभी ही चले जाएंगे इसी वक्त ही. इनसे 18 किलो गर्दा बरामद हुआ है और इनका एक जो साथ वाला था जो भाग गया है उसका ताल्लुक कोयटा से है. इनका भी ताल्लुक कोयटा से ही है और बकौल इनके कि मेरा असल में मालिक वही है, मैं डिलीवरी देता हूँ. नाज़रीन, ETO एक्साइज वेस्ट के ऑफिस पहुंच चुके हैं. एक अच्छी कार्रवाई हुई है, मुलजिम को लेकर थाने पहुंच गए और फर्दर कार्रवाई होगी, इसके इन्वेस्टिगेट किया जाएगा. सर ये अभी बताएं, यहाँ पे लॉकअप वगैरह आपके पास? जी जी बिल्कुल है. लॉकअप में करेंगे इसको? पहले आप इसको अब इंट्रोगेट करते हैं, फिर उसके बाद आपके सामने इसको लॉकअप करेंगे. पहले इंटरोगेट किया जाएगा, इंटरोगेट करके फर्दर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ये दे रहा होगा तो उसकी के मुताबिक फर्दर आगे कार्रवाई होगी और आगे चल के इसको लॉकअप कर दिया जाएगा. एक्साइज ऑफिस पहुंचकर मुलजिम से तफ्तीश शुरू की गई तो ज़ाब्ते के मुताबिक टीम गिरफ्त को कमरा तफ्तीश से बाहर रुकने को कहा गया. वेपन नहीं है सर इनके पास, वेपन नहीं. अभी हम इसके पूछताछ करते हैं, आप ज़रा हमें थोड़ा टाइम दे दें प्लीज़, आप ज़रा बाहर चले जाएं. नाज़रीन, क्योंकि ये एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसमें लीक ना हो जाए इसी लिहाज से इंटरोगेशन भी की जाती है, तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है. फर्दर फिर प्रोसीडिंग्स जब तक नहीं हो जाती है, हम थोड़ा सा अपनी साफ़ी जिम्मेदारियों को देखते हुए, इस चीज़ को महसूस करते हुए इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे. अथॉरिटीज़ की जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से वो कर लें और फिर उसके बाद हम दोबारा से इनको ज्वाइन करेंगे, इनसे पूछेंगे कि अब आगे क्या कार्रवाई की जाने वाली है इसके ऊपर. तफ्तीश से हासिल होने वाली तफसीलात के मुताबिक जेर हिरासत मुलजिम और मफरूर शख्स का ताल्लुक कोयटा से था और भागने वाला शख्स मनशियात का मालिक था और जेर हिरासत उस शख्स के लिए उजरत पर काम करता था. सर क्या चीज़ें सामने आई हैं? इनसे 18 किलो गर्दा बरामद हुआ है और इनका एक जो साथ वाला था जो भाग गया है उसका ताल्लुक कोयटा से है. इनका भी ताल्लुक कोयटा से ही है और बकौल इनके कि मेरा असल में मालिक वही है, मैं डिलीवरी देता हूँ. पर केजी के हिसाब से मुझे 1000 रुपये मिलते हैं किराया. जैसा कि अब ये 18 किलो है तो इनको 18,000 रुपये वहाँ डिलीवर करने का इसको किराया मिला है. दूसरा, ला कहाँ से रहे थे? ये जी ला रहे थे अपना हरबरेबर रोड से, जहाँ पे ये है अपना टर्मिनल है नेवल के पास,
ये सामान कोटे से आया हुआ है। और इनका जो दूसरा साथी है वो किला अब्दुल्ला का है, हबीबुल्लाह नाम बता रहे हैं उनका। इनका मतलब माल देने वाला भी वही है और कोटे से वही लेके आता है और ये फिर इनको कहता है कि आप ये जगह फलां जगह दे आए, फलां जगह दे आए। जी, अभी आगे फर्दर क्या कार्रवाई की जाएगी? इनके ऊपर अभी FIR वगैरह दर्ज कर दिया आपने? जी बिल्कुल, अभी हम इसके ऊपर FIR कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको अपना सज़ा भी दिलाएंगे। जिस तरह ये नौजवान नस्ल की तबाही कर रहे हैं, जिस तरह ये चंद पैसों के लिए लोगों को नशे पे लगा करके ख़ास करके आज करके हमारे कराची में ये है अपना नौजवान नस्ल को ये तबाह कर रहे हैं, ख़ास करके कॉलेजों में, स्कूलों में बच्चों को इस तरफ ये अपना राग़िब कर रहे हैं अपना कारोबार चमकाने के लिए। अब क्या आगे कार्रवाई क्या की जाएगी? अभी फ़िलहाल तो इसको लॉकअप करते हैं, फिर रात को इंशाल्लाह हम फर्दर से और इंटीग्रेट करेंगे और देखते हैं कि ये क्या इंकशाफ करता है और हमें बकाया जो इसके पास सामान पड़ा हुआ है वो देता है या क्या करता है। नाज़रीन, इस वक्त लॉकअप किया जा रहा है मुलजिम को और आगे फर्दर कार्रवाई के लिए जो इनको फर्दर इंटेरोगेट करना है वो रात में किया जाएगा और कल जो है इनको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। मुलजिम को लॉकअप कर दिया गया, जिसको बाकी की कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया जाना था। फर्दर जो कार्रवाई होगी वो कुछ दिनों का प्रोसेस है। इनको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करके इनके ऊपर रिमांड लिया जाएगा ताकि आगे फर्दर कोई अगर इंकशाफ करते हैं तो उसके लिए ये इंफॉर्मेशन दे सकें, रहनुमाई कर सकें और फिर आगे जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो हो सके। यहाँ तक कि कार्रवाई जो है वो फर्दर की जा चुकी है, FIR दर्ज की जा चुकी है, उसी के मुताबिक इनको चालान के लिए पेश किया जाएगा अदालत में। अभी इंफॉर्मेशन आ चुकी है इनके पास खास की तरफ से। अभी क्या पोजीशन है? आ रहा है बंदा? हाँ, बस तक पहुंचने वाला ही। नाज़रीन, इंफॉर्मेशन आ चुकी है, इन्फॉर्मर उस जगह पे मौजूद है, मंशात फरोश भी आ चुके हैं। कार्रवाई को कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि एक्साइज ईस्ट की तरफ से असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर ईस्ट अर्जुमल ने टीम गिरफ्त से राबिता करके एक मनशियात फरोश गिरोह के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया देते हुए एक्साइज ईस्ट के ऑफिस आने की दावत दी। नाज़रीन, कुछ दिनों पहले ही हमने एक कार्रवाई की थी एंटी नारकोटिक्स के हवाले से। अहमद यार खोसो साहब के साथ हमने एक कार्रवाई की थी। उसके बाद आज हमें बुलाया गया है ईस्ट की तरफ से। यहाँ पे अर्जुमल साहब हैं जो ETO एक्साइज हैं, उनके पास हम अभी जा रहे हैं। उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और वो क्या कार्रवाई करते हैं आगे चल के देखते हैं। सर, आज की जो कार्रवाई है आपने अभी हमें बुलाया था, तो क्या किस नौयत की कार्रवाई होने वाली है, कुछ बता सकते हैं? भाई मुखबर खास ने बताया है कि पहलवान गोट में कैंप से जो कुची कैंप है वहाँ से एक स्मगलर हीरोइन का 1 किलो से ज़्यादा मिकदार जो है किसी को हवाले करेगा। जी, तो अभी कार्रवाई के लिए आपके पास तैयारी हो चुकी है, पूरी फोर्स तैयार? मोबाइल भी तैयार है, स्टाफ भी तैयार है। नाज़रीन, अभी इंफॉर्मेशन आ चुकी है इनके पास खास की तरफ से और उस जगह जाने के लिए अब पूरी फोर्स तैयार है। थोड़ी देर में वहाँ पे पहुँच के आपको बाकी कार्रवाई दिखाते हैं। एक्साइज इन्फॉर्मर की इत्तला के मुताबिक एक मनशियात फरोश गिरोह हीरोइन पाउडर की तरसील के लिए शहर में दाखिल हो चुका था। इत्तला मिलते ही एक्साइज टीम कार्रवाई के लिए फौरन एक्साइज ईस्ट ऑफिस से रवाना हो गई। नाज़रीन, जहाँ की इत्तला थी वहाँ अभी पहुँचने वाले हैं एक्साइज की टीम और अभी थोड़ी देर में जो है वो ऑपरेशन कंडक्ट कर दिया जाएगा। इत्तला इनके पास आ चुकी है। अभी क्या पोजीशन है? आ रहा है बंदा? हाँ, बस तक पहुंचने वाला ही। इन्फॉर्मर से पहले पहुंचने से पहले ही हम उसको जो है ना कैचअप कर लेंगे, नहीं तो फिर इन्फॉर्मर हमारा जाहिर हो जाएगा। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर में कार्रवाई होने वाली है। यहाँ पे मोबाइलों को दूर काफ़ी उस एरिया से जहाँ पे डिलीवरी देने आ रहा है वो मंशात फरोश काफ़ी दूर खड़ा कर दिया गया है। जैसे ही सिग्नल मिलता है इन्फॉर्मर की तरफ से वहाँ पे तेज़ी से जाएंगे और कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, इन्फॉर्मर उस जगह पे मौजूद है, मंशात फरोश भी आ चुके हैं, तो फौरी तौर पे जो है गाड़ियाँ मूव कर रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं मोबाइल जा रही है। मनशियात फरोश के जाए वकूआ पहुंचते ही उन्हें संभलने का मौका भी न मिला और घात लगाए हुए एहलकारों ने अगले ही लम्हे उन्हें गिरफ्त में ले लिया। सर, क्या बंदे को पकड़ लिया? जी बिल्कुल। ये सामान है इसके पास? सामान चेक करो, असला वगैरह? मंशात है? हाँ, असला देखो, इसको तलाशी लो।
फौरी तौर पर नाज़रीन कार्रवाई की गई है। मंशियात फरोश जो मंशियात लेकर आया था वो एक बैग में, स्कूल बैग में लेकर आया था। छुपाने के लिए बहुत सारे इनके पास तरीके होते हैं। नाज़रीन अभी मुशीरनामा तैयार किया जा रहा है। फौरी तौर पर रेड के बाद एक प्रोसीजर होता है, एक छोटी सी एक कागजी कार्रवाई की जाती है, उसके बाद जो है आगे फर्दर मूव किया जाता है। सर मुशीरनामा क्या किस चीज़ के लिए बनाया जाता है? सर मेमो ऑफ अरेस्ट जो है ना ऑन स्पॉट बनाया जाता है कि क्या चीज़ उससे हमने रिकवर की है। तो 1 किलो से ज़्यादा हीरोइन रिकवर की है, तो उसका मुशीरनामा बना। जेर हिरासत मुल्जिम को तफ्तीश के लिए एक्साइज ईस्ट ऑफिस लेकर रवाना हो गए। नाज़रीन जो इंटरोगेशन की कार्रवाई होनी थी वो पूरी हो चुकी है। अर्जुमल साहब जो ETO ईस्ट है उनसे हम पूछते हैं, सर क्या कार्रवाई में चीज़ें सामने आई हैं, इसने क्या बताया? भाई इसने बताया है कि ये मुख्तलिफ इलाकों में आके सप्लाई करता है और ये इसका नाम है अजमल खान वर्दोमल खेल, और ये कोची कैंप जो अफगान कैंप भी कहते हैं, एक गड्ढा से वहाँ से लेके मुख्तलिफ जगहों पे इधर जो है डिलीवरियाँ देता है। फिर वहाँ से पेडलर जो आके बेचते हैं, हमने इसको रंगे हाथों 1 किलो 50 ग्राम में पकड़ा है। 1 किलो 50 ग्राम हीरोइन निकली पाउडर। तफ्तीश के मुताबिक जेर हिरासत शख्स का नाम अजमल था। बरामद होने वाली मनशियात की रकम 7 लाख रुपए बताई गई। मुल्जिम अफगान कैंप से हीरोइन पाउडर लेकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करता था। नाज़रीन एक अच्छी कार्रवाई ETO ईस्ट की तरफ से सामने आई है। तकरीबन 7.5 लाख रुपए इस मंशियात की कीमत है और इसको ज़्यादातर अभी देखा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ ऐसे तालीमी इदारों में बच्चे पढ़ते हैं, वो ज़्यादातर मंशियात की तरफ लगा दिए गए हैं। और वजह इसकी ये है कि वो आसान टारगेट होते हैं, कच्चा जहन होता है और उनको जिस तरफ लगा दिया जाए उसी तरफ चले जाते हैं। हाल कुछ ऐसे मामलात भी देखे गए कि ड्रग पेडलर्स जो है वो इन बच्चों को ही, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और उनसे ये मंशियात फ़रोग़ करवाते हैं। ये तमाम चीज़ें एक माशरती तौर पे हमारे लिए एक बुराई है। इसके लिए ETO एक्साइज और मुख्तलिफ नारकोटिक्स, एंटी नारकोटिक्स के इदारे काम कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये तमाम कार्रवाइयाँ जो कर रहे हैं उसका कोई ना कोई बेहतर हल हमारे सामने आएगा। टोटल केसेस हमारे हैं 16, जिसमें अरेस्टेड पर्सनस हैं 17। 1 किलो 480 ग्राम हमने हीरोइन पकड़ी है और चेस पकड़ा है 45 किलो 554 ग्राम चेस पकड़ा है। और ओपीएम है 5 किलो 269 ग्राम ओपीएम पकड़ा है हमने। और इलीगल लिक्विड है हमारा 120 लीटर्स। आइस मेथनॉल है 210 ग्राम पकड़ा हुआ है। इसकी अच्छी हमारी कारकर्दगी और भी हम कोशिश कर रहे हैं इसको और बेहतर करें। 16 जो हमारे चल रहे हैं ट्रायल केसेस हैं, ये जुलाई टू अक्टूबर हम बता रहे हैं। इससे पहले काफ़ी केसेस जो है हमारे हो चुके, डिसाइड हो चुके हैं। बहुत सी पनिशमेंट मिल चुकी है। तकरीबन हमारे केसेस जो होते हैं उनमें से पनिशमेंट मिलती है उनको। मैं तो उनको मैसेज दूंगा कि बात हो जाए तो बेहतर है। जो बच्चों को इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो उनके साथ हमारी जंग है मंशियात के खिलाफ। तो ऐसे ही हम जंग लड़ रहे हैं, हम जंग लड़ेंगे उनसे, उनको अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे और पकड़ेंगे, पकड़े भी हैं और पकड़ेंगे भी, छोड़ेंगे उनको हम भी नहीं। ऐसा लगता है कि शहर कायद में मनशियात फल की तरह फरोख्त हो रही है। मनशियात फरोश खुलेआम घिनौना खेल खेल रहे हैं। शाहराहों और फुटपाथों पर सिगरेट और इंजेक्शन से जिंदगियां बर्बाद करने वालों के मनाजिर खुले आम देखे जा सकते हैं। अच्छे घरानों के चश्मो चराग भी नशे की लत में मुब्तला होकर गंदे नालों पर बैठे तसव्वुराती महल्लात का मजा ले रहे हैं। मुल्की सरहदों से गुजरकर नौजवानों की रगों तक पहुंचने वाली मनशियात के पीछे मनशियात फरोश माफिया का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है। पाकिस्तान को नौजवान नस्ल को बचाने और तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में खड़ा करने के लिए सरहदों की हिफाजत के साथ सरहदी दरामदात पर भी कड़ी निगरानी करना होगी। जब तक मुल्क दुश्मन अनासिर की सरगोबी नहीं की जाती, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वालों को टीम गिरफ्त में लेती रहेगी।